Distinguished speaker is Syed Shahnawaz Nadir, who is the General Manager with the Punjab Pension Fund. Before I hand over to the experts, I'll just quickly run through the housekeeping rules. Today's session is for an hour long, and we request all of the participants to stay muted and turn off their videos. The question and answer sessions will be held at the end of the session, but you can type your questions in the chat box while the webinar is in session as well. And lastly, we will post a recording of this session on our YouTube channel and also on our website. So over to you, Abdurrahman Waraitsab, and thank you from my side. Waraitsab? I think he might have dropped off. So I think he's just trying to reconnect, yes. So meanwhile, I request all of you to switch on your video so that we can just quickly have a group photograph while we're waiting for our moderator to join. May I request all of you to please switch on your video so that we can have a quick picture. Harana Omar, could you please just take a screenshot? Thank you, all of you. Please confirm once you have done that. Okay, we're done. Thank you, thank you, thank you, thank you. I can start otherwise. Gee, I think maybe you can just start a bit of your introduction and start with the webinar, and Waraitsab can just join. जी Thank you. I'm grateful. बहुत शुक्रिया CFA सोसाइटी का, मैडम सरवत आपका, अब्दुर्रहमान वराइत्साब का और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट का. ये टॉपिक, even though I work for the Punjab Pension Fund, this topic is genuinely close to my heart. हमारे सिविल सर्विस पेंशन्स की जो कॉस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, टू द एक्सटेंट कि ये प्रोविंशियल और नेशनल लेवल के बजट्स को अफेक्ट कर रही है. इसकी सेंसिटिविटी और कॉजेस का लोगों को इतना अंदाजा नहीं है. इवन जो सिस्टम में मौजूद होते हैं, इवन दे आर नॉट फुली अवेयर. इस टॉपिक को चूज करने का पर्पस ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए और बताया जाए कि हाउ पेंशन हैज बिकम सच अ बिग चैलेंज एंड हाउ इट कैन बी मिटिगेटेड. तो आई हैव अ presentation of around 35 minutes, and then we will have around 25 minutes for Q&A. So I'll start and I'll share my presentation here. I will share it here. जी. So, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पेंशन का स्ट्रक्चर हमारा क्या है. जो हमारे गवर्नमेंट के डिफरेंट टीयर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, लोकल, unless you actually work for them as a citizen, people don't know the difference. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली प्रोविंशियल, फेडरल, लोकल ये गवर्नमेंट्स डिफरेंट हैं. बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेंशंस, उसकी फंडिंग का सोर्स कोई भी हो, स्कीम के स्ट्रक्चर सेम हैं और ये फेडरल स्कीम की रेप्लिकाज हैं सारी स्कीम्स, और इसलिए प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी सेम हैं. हमारी जो सिविल सर्विस की स्कीम है, इट इज अ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम. अ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम मींस दैट द बेनिफिट इज डिफाइंड एंड नॉट द सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन के पैसे कहाँ से आने हैं. यूजुअली इट्स अ लास्ट पे लिंक्ड पेंशन स्कीम, so we call it a DB. The other schemes could be DC, defined contribution, or it could be a hybrid scheme, but we have a defined benefit scheme, which is a last pay linked scheme. Or the third essential feature of our scheme is that it is a pay as you go. कि रनिंग बजट से पे होती है और किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट फंड पे इसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता. Even if a pension fund exists, the fund itself is not obliged to pay the pension. Now, why is the government running on a pay as you go vis-a-vis if a private sector employer has a pension scheme, so that employer is supposed to have a fund and to have it adequately funded as per the accounting standards. That is because the governments are going concerns. Even British दौर के pensioners जो थे governments में absorb हुए. One unit जब पाकिस्तान था और सूबे बने 1970 में, तो उसके pensioners सूबों को devolve हुए, सूबों से जिलों को devolve हुए.
government was always there in some form. So the pay-as-you-go model worked. The government was always there as a going concern. An organization which is a corporate entity may not necessarily be a going concern. So इसलिए government ने pay-as-you-go system adopt किया, and also of course because it was convenient. अच्छा, अब हम अपनी जो स्कीम है हमारे प्रोविंसेस की या लोकल गवर्नमेंट्स की या म्यूनिसिपल बॉडीज की, दे आर नॉट लीगली ओब्लाइज्ड टू फॉलो द फेडरल गवर्नमेंट, बट ये टेम्पलेट बहुत स्ट्रांग है और ये प्रेसिडेंट बहुत स्ट्रांग है कि फेडरल गवर्नमेंट के मॉडल को और चेंजेस को फॉलो करते रहें. इवन देयर आर सम डिसकंटिन्यूड एंटिटीज जो बंद हो गई हैं, जैसे पंजाब में रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन थी या सिंध में एक एग्रीकल्चर सप्लाईज ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटीज थी. दीज एंटिटीज वर क्लोज्ड डाउन 15-20 ईयर्स अगो, लेकिन उनके पेंशनर्स का पूल मौजूद था. तो अभी भी उसमें एक डिफंक्ट ऑफिसेज में कुछ सेल बने हुए हैं जो सिर्फ पेंशनर्स के मैटर्स को कंटिन्यू करें और उनको फॉलो करते रहें. तो वो सिर्फ इसलिए कि वो टेम्पलेट इतना स्ट्रांग था कि गवर्नमेंट लामहल उनको बेल आउट कर देती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिकअप कर लेती है. सो वी हैव कंटिन्यूड स्कीम्स एंड डिसकंटिन्यूड स्कीम्स व्हिच आर ऑल अ रेप्लिका ऑफ द फेडरल स्कीम. अच्छा, लास्टली एम्प्लॉय बेनिफिट्स के मैटर्स जो प्राइवेट सेक्टर को फेस करने होते हैं वर्सेस जो पब्लिक सेक्टर को फेस करने होते हैं, दोनों में एक प्रॉब्लम यह है कि दीज आर एक्चुअली रेगुलेटरी ऑर्फन्स. इनके लिए कोई रेगुलेटर नहीं, एसईसीपी देखेगा या गवर्नमेंट का कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लेबर डिपार्टमेंट देखेगा या अलग से कोई लेजिस्लेशन है. सब ने अपने रूल्स पास किए हैं. इन द केस ऑफ प्रोविंसेस देयर इज एक्चुअली नो पेंशन लॉ, देयर आर ओनली रूल्स एंड वेरियस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो उसको गवर्न करते हों. तो ये एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है कि किसी ड्रामेटिक चेंज को अगर इम्पोज करना है तो किस लॉ के तहत करें. तो ये एक मिसिंग एरिया है. ये मिसिंग एरिया प्राइवेट सेक्टर में भी एग्जिस्ट करता है, बट मोर सो इन द सिविल सर्विस स्कीम्स. नाउ वी हैव regardless that the pension scheme is same across various entities, we have 5 different very large pools of pensioners. One is the armed forces. Pension की entitlement same है across all 5 pools, but characteristics में क्या फर्क है कि armed forces में लोग they enter early and they retire early. So consequently सर्विंग एम्प्लॉइज और पेंशनर्स का रेशियो है वो बहुत ज्यादा लॉपसाइडेड होता है. 18 लाख पेंशनर्स हैं और तकरीबन 6.5 लाख के करीब एक्टिव सर्विस फोर्स है. So the number of pensioners is far higher than the active workforce. Then we have the largest number of employees in provinces, but proportionately lesser pensioners in the provinces. क्योंकि ये schemes इतनी mature नहीं हैं अभी. Provinces की schemes 1970 में start हुई हैं और mass employment 80s और 90s और recently आई हुई हैं. तो pensioners in the provinces are increasing at the most rapid pace, but even now the pensioners are around 56% of the employees in number terms. So then we have a third pool, which is our pre-partition legacy entities, railways and postal services. ये बहुत mature pension schemes हैं. इसमें भी pensioners की जो तादाद है वो employees की तादाद से कहीं ज़्यादा भी है या उनके बराबर है. So हमारा trend ये suggest करता है कि the more mature a scheme, the more the number of pensioners with respect to the number of employees. And then we have the federal government excluding the armed forces. Now this is a very small pool. इतने federal government के employees नहीं है अगर उनकी ये legacy entities और armed forces को निकालें. Consequently, pensioners भी इनके इतने ज्यादा नहीं है. फेडरल गवर्नमेंट का बजट जितना बड़ा है उस लिहाज से उनको पेंशन्स इतना हर्ट नहीं करती जितनी प्रोविंसेस को करती हैं. एंड द फिफ्थ पूल इज द लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपल सर्विसेज एंड अदर एंटिटीज जो कि सर्विस ओरिएंटेड है, उनके इतने रेवेन्यूज नहीं होते. वाटर बोर्ड, केएमसी, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, बट ये फाइनेंशियली भी सबसे ज्यादा चैलेंज हैं. इनके ये ऑर्गेनाइजेशंस भी टिपिकली सूबों से पुरानी हैं, तो इनकी भी जो पेंशनर्स की तादाद है वो एज अ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज अच्छी खासी ज्यादा है और फाइनेंशियल रिसोर्स इनका बड़ा पुअर है. सो ये भी सब्सिडी पे डिपेंडेंट है. तो इन 5 पूलों में पॉलिसी सेम है, लेकिन डेमोग्राफिक्स डिफरेंसेस की वजह से बर्डन जो है वो वेरी कर रहा है. बट बहरहाल प्रोविंसेस का पूल इवेंचुअली सबसे बड़ा हो जाएगा इन द लॉन्ग रन. नाउ हाउ टू मेजर, हाउ टू से कि पेंशन ज्यादा है या कम है. कोई स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? रेवेन्यू से भी दे कैन बी कंपेयर्ड, कॉस्ट से भी दे कैन बी कंपेयर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट अफिलिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन और द पूल. एंड एब्सोल्यूट अमाउंट्स में भी देख सकते हैं कि जी इतने रुपए का खर्चा है. फेडरल गवर्नमेंट का अगर 600 अरब का खर्चा है तो जी इट लुक्स वेरी लार्ज, बट 900 अरब का बजट भी है. सो उस पोर्शन में वो थोड़ा नीचे आ जाता है. एंड ऑफ कोर्स इन कंपैरिजन विद द पास्ट ट्रेंड्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन की जी पहले तो हम इतना खर्चा कर रहे थे, अब इतना ज्यादा कर रहे हैं, ये भी अगेन एब्सोल्यूट अमाउंट से लिंक अप हो जाता है. सो मैंने जो आगे एक्सप्लेन ज्यादा किया वो रेवेन्यू से लिंक किया है बड़ी हद तक, क्योंकि ये ग्लोबली ज्यादा यूज होता है, क्योंकि
Globally, most organizations that give pensions have some form of revenue. Now to put things into perspective, ये सूबों का जनरल ट्रेंड है, ये अक्रॉस प्रोविंसेस थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, वरना चारों सूबों में इतना फर्क नहीं है. पेंशन बिल वाज 4% फॉर द प्रोविंसेस रेवेन्यूज इन 2004-5. हम ज्यादा नहीं, हम 16-17 साल पहले की बात करें, जो कि 2001 में 15% हो चुका है ऑफ द रेवेन्यूज, कंसिडरिंग के रेवेन्यूज भी 12% से तकरीबन ग्रो हो रहे हैं, एंड दे आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो टू 22% ऑफ रेवेन्यूज बाय 2040. 2060 की हम बात नहीं करते, बहुत दूर है, लेकिन पेंशन के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक 2060 की भी बात करें तो इट्स मे बी अ ब्लिंक ऑफ एन आई. ये इतनी लंबी स्कीम्स होती हैं, इतने इनके लंबे फेज आउट पीरियड्स होते हैं. आई हैव गिवन अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ पंजाब बिकॉज मेरे पास इसका डेटा मौजूद था. मैंने सिंध का डेटा मंगवा के भी चेक किया. मोर और लेस द ट्रेंड इज सेम, एक्सेप्ट कि पंजाब में एजिंग थोड़ी सी ज्यादा है. पंजाब में जो पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ 80s में आई थी, सिंध में 90s में आई, तो वो एजिंग के फर्क के अलावा इट्स मोर और लेस द सेम स्कीम एंड द सेम परसेंटेजेस. नाउ टू गिव यू a perspective के revenue के सूबे के percentages I have explained, and you can see it in the column that it has grown to around 15% of the revenue. But as a percentage of the current expenditure, the non-development expenditure के जो सूबों के चलाने की cost होती है, उसका ये 19% ज़्यादा हो चुका है. So which means के now for every person a government employee who's engaged in some form of service delivery, उससे कुछ कम खर्चा हम उसकी उन एम्प्लॉइज की पास्ट सर्विस के लिए दे रहे हैं जो अब एक्टिव पूल से निकल चुके हैं. आई मीन पब्लिक सेक्टर के बजट का पर्पस तो सर्विस डिलीवरी है ना. अगर उसमें 19% हम निकाल लेते हैं, करंट एक्सपेंडिचर की तरफ ले जाते हैं, तो इट मींस वी हैव क्राउडेड आउट द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और वी हैव क्राउडेड आउट द अदर फंड्स अवेलेबल फॉर सर्विस डिलीवरी. So that was the main point that we had, that it is rapidly reducing the fiscal space. On the contrary, payroll इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा. Pension roll is rising far more rapidly. And where is the projection? You can see that every year it's around a 0.5% increase as a percentage of revenue, which is quite fast. इसमें भी देखें 2030 तक we expect to be around 18% of our revenues will be spent on pensions. But उसके बाद जो लेट 90s की और 2000s की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो रिटायरमेंट के पूल में शामिल हो जाएंगे, तो इट विल सडनली गो अप. तो इसमें भी हम आते हैं. So I've given the breakup of the pension, that the total pension is 294 billion. By annual pension I mean the annual recurring pension, the monthly recurring pension bill. By commutation, मैं ये recap और ये educate लोगों को इसलिए कर रहा हूँ because I understand that कई audience में से लोगों को commutation का या pension के terminologies का concept नहीं होगा. The provinces and the federal government spend a lot of amount on commutation. Commutation means that those people who have retired, they have the option of taking a certain percentage of their future pension in one go. तो उसके ऊपर काफी पैसे खर्च हो जाते हैं. So that is called commutation. Now these are the 5 main causes, and in fact they are in order of impact. कि सबसे बड़ा जो cause है वो तो ये है कि our scheme has become quite generous. I have studied about 27-28 schemes of the region and at also in developed economies. इससे ज्यादा generous scheme नहीं है. लेकिन 2010 तक ऐसा नहीं था. ये 2010 के बाद इसकी जनरसिटी में बड़ा तेजी से इजाफा हुआ है. Our pension formula for the public sector was that the first pension will be equivalent to 70% of the last drawn pay. So basically ये हुआ है कि उस फॉर्मूला के ओवर एंड अबव गवर्नमेंट इंक्रीजेस दे दिए कि जी ठीक है, आपका फॉर्मूला तो ये कह रहा था कि आपके लाख रुपए तनख्वाह थी तो 70,000 पेंशन बननी चाहिए, बट वी विल गिव यू सम अदर इंक्रीजेस एज अ बेनेवोलेंस. सो दैट हैज इंक्रीज्ड द पेंशन to the extent that now the pension is actually bigger than the salary itself. That has triggered rapid early retirement requests. The second reason is that people, past retirees, are given increases at a more generous pace than even pay increases. फिर ये कि restoration of commutation एक technical point है, वो मैंने आगे थोड़ा समझाया है, मैं अभी इसको यहाँ समझाना skip कर दूंगा. The fourth reason is that the family pension benefits have become multi-generation. जो पेंशन का हमारा ओरिजिनल मॉडल था वो स्पाउस के बियॉन्ड नहीं था, एंड इवन until the 1980s वो स्पाउस के ऊपर भी एक टाइम लिमिट लगा देता था कि जी up to 10% of the date of retirement, and if someone retired at 60 and passed away at the age of 63, तो विडो को पेंशन या स्पाउस को पेंशन सिर्फ 7 years के लिए मिलती थी. Then it was in 1986 it was made lifelong. बट उसके बाद
इतनी लेयर्स ऑफ बेनिफिशरीज हो गए कि जी अनमैरिड डॉटर, अगर मैरिड नहीं था तो पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं है तो सिबलिंग्स, अगर चिल्ड्रन थे और फौत हो गए तो ग्रैंड चिल्ड्रन, तो इट हैज बिकम मल्टी जनरेशनल। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि पेंशन में से कोई 40-50 ईयर्स से पहले एग्जिट हो सके एंट्री। And the last, of course, reason is the rapidly retiring workforce, including early voluntary retirements. So I'll come to these 5 points have been explained ahead. The first and foremost reason that I said कि pension generous हो गई है, we call it the replacement rate, कि किसी इंसान की कितनी सैलरी थी तो कितनी पेंशन है जो उसके खर्चों को सफाइस कर सकती है। गवर्नमेंट ने बहुत पहले फॉर्मूला फिक्स कर दिया था that the replacement rate would be about 70% for someone who serves 30 years in the government. For more than 30 years of service, there was no benefit in pensionary terms. This replacement rate was 70% in 2010. It is now 157%, which means that early retirement is highly incentivized. In fact, people who approach me and with the request for calculation of their पेंशन की कितनी बनेगी, जब मैं इनको कैलकुलेशन करके देता हूँ, टिपिकली अगले दिन वाले रिटायरमेंट फाइल कर देते हैं। सो अर्ली रिटायरमेंट्स नाउ हैव एक्चुअली टच्ड 60% ऑफ द टोटल रिटायरमेंट्स। दिस इज वेरी हाई। इससे हमारा एक्चुअली ऑपरेशनल स्ट्रक्चर भी अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज एक्टिव एंड पीपल आर लिविंग इन देयर मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स। Then a medical allowance was given to pensioners as a part of the pension from 2010. इसका भी इम्पैक्ट आ गया, ये मिला के 157% बन रहा है। अब हुआ ये है कि those who retired prior to 2010, let's call them old pensioners, and those who are retiring after 2010 and up to now, let's call them new pensioners. इनके दरम्यान disparity बढ़ती जा रही है और ये हर साल बढ़ती ही जा रही है कि early new retiree is more incentivized. To give you an example, हमारे यहाँ गवर्नमेंट में ग्रेड सिस्टम्स होते हैं। 17 ग्रेड मींस द स्टार्ट ऑफ द ऑफिसर कैडर, एंड स्टेज 15 मींस के दैट पर्सन हैज सर्व्ड 15 इयर्स इन दैट ग्रेड। उसकी मैंने 2 एक्चुअल केसेस लिए हैं। अगर इफ समवन रिटायर्ड इन 2010, the basic salary was around 21,000 in 2010. For a similar person now, the basic salary will be around 65,000. So if that person retires now, the starting pension will be 1,01,000 or approximately 1,02,000. I'm talking about the last line in red font. और जो 2010 का रिटायरी था उसको बीच में इंक्रीजेस मिलके भी अभी वो 46,000 तक पहुंचा होगा। तो इसलिए वो ग्रुप बहुत लॉबी करता है एक्टिवली कि जी हम बहुत डिसएडवांटेज पे हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। सो गवर्नमेंट एक तरफ तो वो ये फेस कर रही है कि पेंशन का बिल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ द पास्ट रिटायरीज आर कंटिन्यूअसली लॉबिंग फॉर ग्रेटर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द डिस्पैरिटी फैक्टर। The other reason is, of course, that this has resulted in very generous increases. Let me clarify that pension increase is not a matter of right, but then why do we give increases? Public sector को समझें कि एक हमारा अपने एम्प्लॉयज के साथ रिश्ता एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का होता है और एक हमारा रिश्ता उनके साथ इन द कैपेसिटी ऑफ सिटीजन होता है। इट्स अ टू प्रोंग्ड रिलेशनशिप। हम उतनी आसानी से मना नहीं कर पाते, हमें बहुत फेयर होना पड़ता है, हमें थोड़ा स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बेनेवलेंस दिखानी पड़ती है। सो और ऑफ कोर्स बहुत सारी कंसिडरेशन आ जाती हैं कि बाज़ औक़ात जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो बिगर पिक्चर को उतना गौर से नहीं देख रहे होते, इमीडिएट एडवांटेज को या इमीडिएट इम्पैक्ट को देख रहे होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। नाउ द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन इन द केस ऑफ पंजाब हैज इंक्रीज्ड एट अ कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ऑफ 21.5%. सो पेंशन CPI 6.6% थी सिर्फ, लेकिन हमने 8.8% के इंक्रीजेस दिए। एक्चुअली इंक्रीजेस उससे ज्यादा दिए हैं क्योंकि मिनिमम पेंशन भी बढ़ाई हमने। एब्सोल्यूट मिनिमम पेंशन इज नाउ 10,000 रुपीज। ये 12 साल पहले तक 150 रुपया थी। अब दैट वाज अ मीनिंगलेस अमाउंट, तो 10,000 तक अब कर दी गई है। सो मिनिमम पेंशन के इंक्रीजेस जो हैं वो भी काफी एक इट बिकम्स अ फाइनेंशियल कांस्टेंट। इट मींस दैट द एज एविडेंट इन द इंक्रीज इन एनुअल पेंशन एक्सपेंडिचर। So now there is one point which is purely of a technical nature. I will try to simplify it. Commutation means the lump sum payment, as I told a few slides back, कि एक शख्स अगर रिटायर होता है और उसकी पेंशन डिटरमिन होती है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, ही इज गिवन ऑप्शन कि आप इसमें से 35,000 रुपए फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स आपको मिलनी थी वो लम सम ले लें। But after 12 years, but after you've taken that lump sum, your pension will reduce to 65,000. It will be reduced by 35%. So लाख वाले की पेंशन रिकरिंग होगी 65,000. Now that pension is commuted for 12 years. When that 12 years period is over, that 35,000 is added back. ये फैसला 2015 में हुआ था as a result of court order.
सो उससे ये हो रहा है कि पेंशन इंक्रीज 12 इयर्स के बाद एकदम से काफी सारा आ जाता है। अब ये ठीक है, कोर्ट्स में सही कंटेस्ट नहीं हुआ या सही हमने ऑफिस ऑर्डर्स उसके प्रॉपर्ली नहीं बनाए थे, रूल्स नहीं बनाए थे, बट इसका इंपैक्ट इतना आता है कि रेस्टोरेशन का इंपैक्ट इज अबाउट 8% इंक्रीज इन द पेंशन बिल एवरी ईयर। सो रेस्टोरेशन इज अ फाइनेंशियली चैलेंजिंग सिचुएशन। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर कि हमारा पेंशन के बेनिफिट कितना चलता है। If someone retires, if I'm talking about a male pensioner retiring at the age of 60 years, superannuation, the life expectancy of a male pensioner is 82 years and the life expectancy of a female pensioner is 87 years. This is considerably higher than the longevity expectations of the general citizens. जनरल सिटीजन में हम अभी तक जो है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर हम 72 इयर्स को क्रॉस नहीं कर पाए। तो इट शोज कि हमारा जो पेंशनर है वो थोड़ा बेटर ऑफ है, बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर है, तो वो उसकी लॉन्जेविटी भी ज्यादा है। एंड सिंस वाइव्स आर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज आर मेल, वाइव्स आर टिपिकली 5 इयर्स यंगर, दे लिव 5 इयर्स मोर। अगर एक शख्स 22 इयर्स खुद पेंशन लेता है, विडो जो होती है वो 10 इयर्स पेंशन लेती है, फिर जो दूसरे टीयर्स ऑफ बेनिफिट्स हैं वो एटलीस्ट 10 इयर्स और लेते हैं। द मिनिमम पेंशन बेनिफिट इज ऑफ 42 इयर्स। सो सोचें अगर कोई शख्स 30 इयर्स पे एंटर हुआ है, 30 इयर्स उसने सैलरी ली, फिर 42 इयर्स की पेंशन चली। सो टेकिंग फिलिंग अप अ गवर्नमेंट पोस्ट मींस अ 72 ईयर कमिटमेंट। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली रिटायरमेंट्स। एज आई एक्सप्लेन कि अर्ली रिटायरमेंट्स बढ़ रही हैं। इट हैज इंक्रीज्ड टू more than 60%। अब हमने आके इस साल से कंट्रोल किया है, पिछले साल से, when we put a ban on early retirements before the age of 55 years, तो ये कम होकर फिर 50% पे आ गया है। बट 2-3 years में जो हमने ये डेफरमेंट अचीव की, ये फिर ज्यादा बढ़ जाएगी unless we take up other reforms. If pension is so attractive, then people are incentivized to retire. Again, how much are the number of pensioners as a percentage of employee? In 1970, when the provinces were created, one unit was broken, so the pensioners are only 1.66% of the active employees. But now we have increased to about 50% in 2019 and 20. And 2030, we are projecting that 56% of the proportion will be of pensioners vis-a-vis employees. So military pension case में 200% हो चुकी है. But anything more than 50% means a scheme that you need a lot of money to finance it. अच्छा, एक और ट्रेंड भी है, ये मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड मुझे लगा पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में। ये सूबों के अक्रॉस वेरी करता है। वो ये कि हम फीमेल्स की कितनी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। It is appreciated that female recruitment has been substantially increasing. Now, in the pensionary context, since females have a longer life, so the pensionary benefit will continue longer. These are very long-term implications, but this is also a factor जो कि in the total decision-making process हम उसको भी कह सकते हैं कि longevity factor को ये affect कर रहा है, हमारे pension की benefit continuity को। इसको एड्रेस करने का ऑफ कोर्स यही है कि मल्टी जनरेशन पेंशन तक ना जाए, तो ये मैटर फिर रिड्यूस हो सकता है। मेन जो फीमेल पेंशनर अगर एम्प्लॉय होती है तो उसकी पेंशन ज्यादा होती है, फैमिली पेंशनर्स का रेट थोड़ा कम होता है। बट नॉनदलेस द पॉइंट वाज दैट इट इज नाइस दैट वी आर हैविंग अ मोर जेंडर इक्वालिटी, बट इसके भी इम्प्लीकेशंस पेंशन पे आते हैं। नाउ एवरेज एज एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट सर्विस में एंट्री की जो एज है वो टिपिकली रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। पीपल आर ज्वाइनिंग एट अ यंगर एज, सो इट मींस के वो अपना फुल पेंशन बेनिफिट अक्रू करके फिर जाएंगे। इफ समवन जॉइन्स द गवर्नमेंट सर्विस एट द एज ऑफ 49 एंड रिसाइड्स नेचुरली एट द एज ऑफ 60, तो 11 इयर्स पे उसका पेंशन अक्रू बहुत कम हुई होगी। कम से कम 10 साल चाहिए की सर्विस चाहिए होती है पेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए। बट इफ एंड 30 इयर्स इज द ईयर एंड व्हिच द पेंशन बेनिफिट इज मैक्सिमाइज्ड। सो इफ समवन इज जॉइनिंग एट 25 इयर्स, it is highly likely that he will serve for the full 30 years before he leaves. I was also wanting to show that हमारी strength कितनी तेजी से increase हुई है। We have been hiring lots of people, but lately हमने hiring कुछ कम करना शुरू कर दी है। And ये hiring की reduction in hiring is a trend across all provinces and the federation. Now this is the average age at the time of early retirement. Those people who have opted to retire early, they are doing it at very young ages. They are leaving in their productive years. 53 years of age is emerging as the average.
So for a person who was recruited and with the intention that he will serve until expectation that he will serve until the age of 60, the people are now living at the age of average age of 53 years. Now this is the age distribution of our pensioners. This is a very telling, I'll say, representation that bulk of our pensioners lie between the age bracket of 60 to 70, because recently the trend of early retirement has increased substantially. So this pool shows that we have a very relatively a very young pool of pensioners. When we talk about pensioners and an average life expectancy of 82 to 87 years, about 45% of our pensioners are in the age bracket of 60 to 70 years. So any reform that we have to take will give benefit actually after 30 years. क्योंकि ये pensioners तो pool में शामिल हो गए हैं, they are here for a very long number of years. And now again regarding the early retirement trend, those who take early retirement, they are typically serving more than 30 years. So to serve 30 years, they maximize their pension benefits and then they leave. So this graph shows that bulk of the people in the present pool and during the last 5 years, if they were eligible to take early retirement, they did take it and they left. So इसकी सिर्फ ये representation है कि अगर pension incentivized है, so people will take early retirement, even if they maybe there can be so many factors that encourage people to retire, but सबसे बड़ा factor pension की attractiveness ही सामने आ रहा है. अच्छा, ये field formation में ज़्यादा है, secretariat functions में या जहाँ allowances ज़्यादा है वहाँ कम है, but 50% of the workforce of provinces in the education department. Lately हमने enforcement काफी की है, ghost teachers नहीं हो, stools time पे जाएं. जब ये enforcement ज़्यादा सख्त होती है, लोग early retirement ले लेते हैं, ये भी एक contributing factor है. पुलिस में ज़्यादा है early retirement, recruitment की young होती है, लोग जल्दी चले जाते हैं, duties easy नहीं है. ये various remedial measures हैं हमारे पास कि क्या क्या हो सकता है. Of course जो मैंने problem explain किया था, past period increases हमने दिए हैं because of adoption of federal government notification. We can remove that notification. Easier said than done. हमने pension को attractive बहुत कर दिया है. एक दम से कम करेंगे तो future retirees sure करेंगे. We have a lobby group which I was calling old pensioners. Now, if we cut the benefit for future retirees, we'll have another lobby group called baby pensioners or nascent pensioners, howsoever we say. So, कोई भी reform होता है, I think it has to be very staggered and gradual. Then controlling early retirements, because retirement is incentivized. KPK और पंजाब ने तो enforce कर दिया recently that 55 years of age has to be achieved before proceeding on early retirement. बाकियों ने नहीं किया. I would have said that this is just a deferment. It's not a saving. This reform should have been taken if done collectively with other reforms. और अगर pension की attractiveness ही कम कर दी जाती है, तो शायद लोग early retirement वैसे ही ना लेते. इसकी जरूरत ना पड़ती इतनी. Yeah, maybe we can impose a penalty clause on early retirements. Anyhow, then we have, like I said, that we have a pension formula that is linked to the last year's average pay. It is very common that people retire immediately after taking a promotion, or they retire once government has announced a pay increase. We have been proposing and lobbying to revert to the 1986 pre-1986 formula, wherein the last 3 years average pay was taken, so that the anomalies or sudden spikes were smoothed. And then I was explaining commutation, that commutation and pension, we collectively call it the pension bill. 20% of the pension bill comes from commutation. If the commutation rate is reduced from 35% to 25%, there will be some deferments and savings. Restoration of commutation, as explained that in 2015, in 2001, restoration of commutation was stopped, but in 2015 it was re-allowed as a result of a court decision. It is not economically justifiable, but we can only undo it through a pension act. But since we do not have any legislation on pensions, so we cannot take this decision without it. On number 6, I explained that the family pension benefit is too generous. It is illogical, in fact. It has to be changed. The rules have to be modified. अब ये ऐसा ऐसा करके trickle down हुआ है, वन गो में खत्म कर भी दें तो ये future pensioners के लिए हो सकता है, जो उस benefit pool में आ चुके हैं उनके लिए नहीं हो सकता. Because we cannot, for example, an unmarried daughter who is eligible to pension and has been drawing that pension for the last so many years, we cannot say that tomorrow we are not going to give you. And point number 7,
penalty on early retirement. If early retirements are to be discouraged, then the easiest discouragement is to reduce, to impose a penal clause, a discount factor. World over भी होता है, हमने अभी तक इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, but I think हम easily कर सकते हैं अगर करें. Then number 8 is a rationalized pension scheme for new entrants. Let me tell you that of all the forums propagating pension reform that I have interacted with, unequal emphasis was on this factor कि जी नए लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं. मैं बार बार लॉबी कर रहा हूं कि ये रिफॉर्म है, लेकिन इन टोटलिटी ये बहुत छोटा रिफॉर्म है. ऑप्टिकली ये सबसे बड़ा रिफॉर्म लगता है कि जी नए लोगों के लिए नए रूल्स दें. हमारी पुरानी स्कीम के बेनिफिट्स इतने लॉन्ग टर्म हैं. इफ नाउ टुडे वी इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम, द बेनिफिट्स विल नॉट बी विजिबल बिफोर 30 years. कर लें, ये जरूर करें, लेकिन प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसके अनोमलीज भी जरूर दूर की जाएं. एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम या न्यू स्कीम फॉर न्यू एंट्रेंट्स में सबसे बड़ी एनोमली नहीं, द हेजिटेशन इज दैट इट एड्स टू द कॉस्ट कि एग्जिस्टिंग पेंशनर्स की तो कॉस्ट हो ही रही है, नई स्कीम को फंड करने की कॉस्ट इनिशियली ऐड ऑन हो जाएगी. बेनिफिट्स तो 30-40 years के बाद आने, कॉस्ट फौरन आ जाएगी. फिर ये कि जनरल पेंशन इंक्रीजेस हैं, या तो इन्फ्लेशन से लिंक करें या फिर कहीं आके कैप करें. रिव्यू ऑफ रिटायरमेंट एज. Retirement is 60 years in Pakistan. It was fixed in, I think, 1970s. Since then, the life expectancy has increased by at least 10 years. Retirement age बढ़ाई जा सकती है. Pros and cons काफी हैं. I mean, government इसको यूं भी व्यू करती हैं that administrative structure पे इसका काफी impact है. So not too easy to do, but not too difficult either. Other reforms are operational कि proof of life वगैरह के ऊपर करना, ghost pensions को filter out करना, वो बढ़िया तक हम कर चुके हैं. On the provinces and federal pension roll, there are very few ghost pensioners now because automation is almost 100%. I also have given 2-3 slides on the investment related challenges of the pension funds. Let me add that in the public sector, most of the schemes are on a pay as you go basis and largely unfunded or grossly underfunded. In all 4 provinces, there are pension funds, but they cater to a fraction of the accrued pension actuarial liability, and they typically don't have a buffer of more than a year's pension. In some cases even lower, but even then those funds in absolute terms are of hundreds of billions of rupees. तो उसमें इन्वेस्टमेंट के क्या चैलेंजेस आते हैं, और आगे हम कोई कंट्रीब्यूटरी स्कीम लाते हैं. एटलीस्ट इन पंजाब अ कंट्रीब्यूटरी स्कीम हैज बीन डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, बट हेजिटेशन ये भी आ जाती है इसको कि उसको प्राइवेट सेक्टर से डबटेल कैसे करें. अब सबसे बड़ी जो हमारी रिक्वायरमेंट जो कि मीट नहीं हो रही, that our obligations are of a long-term nature, and if you see the past pension increases, they are average 10%. So we should have products which give not less than 10%. Interest rates नीचे होते हैं, PIBs कभी मिलते हैं नहीं. लॉन्ग टर्म में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, लेने का टाइम होता है, सप्लाई नहीं मिलती. So proper products are not available, but it's not just dependent on government bonds. Corporate bonds भी नहीं है, and bank deposits, if you look at the state bank data, overwhelmingly it is less than 1 year. Long term deposits bank भी नहीं दे रहे. What to talk of a 20-year deposit? कोई नहीं देगा. Longevity risk. We need annuities in Pakistan. Other than state life, कोई annuity offer नहीं करता. Terms इतने अच्छे नहीं हैं. Globally भी annuities have to be more attractive. But chicken and egg situation है. हम annuities seek करेंगे तो और insurance companies भी offer करेंगी और pricing भी बेहतर हो जाएगी. But presently we have a challenge that annuities products are not available, so we cannot hedge the longevity risk. And then we do not have inflation risk linked products. हमारे पास zero coupon bonds सिर्फ treasury bills के ही हैं, long term में नहीं है. So we used to have a 10-year zero coupon bond in the form of a defense savings certificate, but now institutional investment is banned into it. It was a very good product otherwise from the pension funds point of view. And then we have diversification constraints. We cannot choose non-financial products. Our systems do not support real estate. We do not have private equity related rules. So whenever we have improvement in legislation in this effect, हम समझते हैं कि investment के diversification यहाँ से भी achieve हो सकती है, and that can of course improve the returns. But present situation is that pension funds only invest in financial products. Then there are some more constraints. VPS has been a celebrated project and a very much appreciated product in the private sector,
but it does not substitute for our defined benefit pension scheme. इसमें longevity address नहीं होती और future pension increases address नहीं होते. ये इसके दो constraints हैं from our perspective. And then one more constraint that we face is that in Pakistan social welfare के gaps बहुत ज़्यादा हैं. अगर हमारे किसी employee की death हो जाए in service, बच्चे यतीम हो जाएं, ये ideally तो ऐसी national level schemes होनी चाहिए जो orphans को और widows को facilitate करें. But ये burden हमारी pension scheme पे आ जाता है. या तो जैसे एहसास प्रोग्राम आया वो भी पोरेस्ट ऑफ पुअर को कैटर कर रहा है, ऐसी नेशनल लेवल स्कीम्स हों जो ऑर्फन्स एंड विडोज के लिए हों और उसके अंदर जो है ये एज अ नेशनल स्कीम हमारे एम्प्लॉइज की भी ऑर्फन्स एंड विडोज एंड फैमिली लाइंस को एड्रेस किया जाए. बट प्रेजेंटली द अनइक्वल बर्डन इज बीइंग फेस्ड बाय द पेंशन स्कीम, सो इट हैज बिकम मोर ऑफ अ वेलफेयर स्कीम देन अ ऑक्यूपेशनल स्कीम. सो दिस इज इट एंड आई would request the moderator to open the floor for questions, and I'll be glad to answer any question. And the more difficult the question, the happier I'll be. Ask anything regarding pensions. Over to you. Thank you, Nader Sahab. I request the President, Mr. Abdur Rahman Waraid Sahab, to please step in and ask the questions. Thank you so much, Mr. Shahnawaz. And just a few words before we get into the question and answer session. Thank you so very much to all the members of the CFA Society of Pakistan and all the honorable guests who made time to attend this valuable and informative session. Mr. Shahnawaz Nader is certainly one of the best known professionals in Pakistan in the area of public pensions. He has extensive experience of managing public sector pension schemes, and he has a very in-depth understanding of how these schemes have been designed and what are the underlying policy issues. I'm sure all of you must have learned a lot from today's presentation, and many of you have questions to ask. So let's start off with the question and answer session. Mr. Shahnawaz, मोहम्मद आसिम साहब का सवाल ये है कि जो रिफॉर्म्स की बात होती रहती है गवर्नमेंट में पेंशन्स रिफॉर्म्स की, उसके ऊपर एक्चुअल प्रोग्रेस के बारे में ऑडियंस को कुछ बताइए कि क्या आपको कोई टेंजिबल प्रोग्रेस नजर आई है या अभी तक ज्यादा डिस्कशंस चल रही? देखिए, प्रोग्रेस इज स्लो बट इट्स नॉट absent. It is not too visible yet. Actually, सबसे बड़ा जो consideration है वो ये है कि whether we should move away from the federal system or not. ये जो template है और ये जो precedent है, it is very very strong across the 100 or 150 different schemes that are run across Pakistan. They all are a replica of the federal government scheme. So people look up to the federal government as a role model कि आप reform को initiate करें तो हम follow करें. Now the problem is that even though the federal pension bill is astronomical, as a percentage of their total cost, it is lesser than that of the provinces. In totality वो इतना hit अभी भी federal government को नहीं कर रहा. It is rising very rapidly. So the problem is still being deferred repeatedly. We have raised it a couple of times and the Pay and Pension Commission has been mandated to propose solutions. The fact कि काम कहीं R&D का हो रहा है gives more optimism. Retirement age को reduce करना, voluntary retirement की age को reduce करना, service की total age को बढ़ाना या कुछ और rules में cosmetic changes लाना, इस पे बात शुरू हो गई है vis-a-vis
प्रीवियसली जब कोई बात भी नहीं हो रही थी। फंडिंग की तरफ इंक्रीज्ड रिकग्निशन आ गई है कि जी पेंशन फंड्स को फंड भी करना चाहिए। लाइकवाइज प्रूफ ऑफ लाइफ के जो सर्विस डिलीवरी के फैक्टर्स हैं, गोस्ट पेंशनर्स को हटाना, पेंशन आसानी से मिल जाए, ये आसानी लाना, इस पे बात शुरू हो गई है। वीजा भी पहले कुछ नहीं हो रही थी। So I will say that there are many steps in the right direction. Yes, they do appear to be slow because प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि उसमें स्टेक होल्डर्स काफी सारे हैं जो अफेक्ट होते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा पॉलिटिकल टच भी आ जाता है। बट आई डू फील के आने वाले 1-1.5 साल में हम कुछ ना कुछ और टेंजिबल स्टेप्स लेंगे। जी बड़ा साहब। चलें, at least the situation is promising in the sense that the debate on the pension challenge and its potential solutions is growing, and let's hope कि जो आप कह रहे हैं वो सच साबित हो और गवर्नमेंट्स जो हैं वो जल्दी इसके ऊपर कोई एक्शन लें। अब्दुल खालिक आमिर साहब का सवाल है कि आपने पेंशन फंड्स मैनेज किए हैं पिछले कई सालों में, पहले आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए आपने किया और अब आप कुछ सालों से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पेंशन फंड मैनेज कर रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रेटजी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं और क्या आप सिर्फ फिक्स्ड इनकम में ही इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं? I have been in contact with the pension funds of all 4 provinces and some small entities, autonomous bodies. There is a general preference for fixed income, mainly because हमारे यहाँ ऐसे टाइम में पॉकेट्स बहुत ज्यादा आए हैं, पॉकेट्स ऑफ टाइम, जिसमें बहुत हाई रेट पे पीआईबीज खरीदना या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदना पॉसिबल था। रिस्क फ्री रेट पे पैसा लॉक करना बहुत आसान रहा है। ऐसा नहीं है कि रूल्स मना करें, इक्विटीज में न जाएं, रिस्क ज्यादा है, ये सेकेंडरी है। मेन मोटिवेशन यही थी कि इफ देवर टाइम पॉकेट्स ऑफ टाइम जब 14% मिला और ये 10 साल में 3 दफा रिपीट हुआ, तो एक्चुअली तो 14% पे लेके 8% पे बेचने का मौका मिला कैपिटल गेन कमाने का। फिर ये था कि एनएसएस के प्रोडक्ट्स ऐसे अट्रैक्टिव थे कि जो कि पुट ऑप्शन देते थे या ये कि जो जीरो कूपन का ऑप्शन देते थे। आई फील कि अब इक्विटीज की तरफ जो है रुझान बढ़ेगा, बिकॉज एनएसएस में बहुत बड़ा चंक था, वो वेरी रैपिडली मैच्योर होगा। सेकेंडली ये कि इक्विटीज के रिटर्न्स इतने ज्यादा रहे नहीं है अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स। इसके बावजूद भी आई कैन से दैट ये इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज बढ़ी है, कम नहीं हुई। सिंध और पंजाब के केस में अप्रोक्सीमेटली इक्विटी का एक्सपोजर 18 और 21% के दरमियान रहा है, एंड इंक्रीजिंग नॉट रिड्यूसिंग। सो यस, इक्विटीज है ऑप्शन, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं। आई थिंक रियल एस्टेट के अलावा हर चीज आजमा चुके हैं प्रोविंशियल पेंशन फंड्स। शाहनवाज मिस सरवत मुझे बता रही हैं कि जफर हसन साहब जो पे एंड पेंशन कमीशन के मेंबर भी हैं, उन्होंने अपने सवालात चैट बॉक्स में नहीं टाइप किए बल्कि उन्होंने अपना हैंड No, रेज he's trying to किया raise his hand. But it says Zafar Ahmed Saab was trying to raise his hand, so I just wanted if you could take his जी। question directly. मैडम I आप have- उन्हें अनम्यूट कीजिए और जी, जफर जी। हसन साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले वो अपने सवालात पूछें, फिर हम बाकी क्वेश्चंस पे आएंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है? जी सर, जी आ रही है। ओके, थैंक यू। मेरा नाम जफर अहमद खान है, जस्ट रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द पे एंड पेंशन कमीशन। आई मस्ट से आई फाउंड दिस प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट। आई लर्नड अ लॉट बिकॉज मेरा कोई इतना एक्सटेंसिव बैकग्राउंड नहीं है in the field of pensions. I was generally aware के काफी मसले हैं and it's a pretty deep-seated one. But इन्होंने काफी अच्छी तरह से explain किया है, so I feel very challenged with the job on hand to do and recommend some good, tangible, doable measures जो कि politically भी acceptable हों। बहरहाल उसकी जिम्मेदारी हमारी तो नहीं होगी, but जो लॉजिकल और सेंसिबल बातें उसकी हम रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दे सके। अच्छा, ये तो हो गई एज अ जनरल सीन सर। मेरा एक सवाल ये है, एंड यू नो आवर स्पीकर हियर माशाल्लाह इज वेरी नॉलेजेबल। आप मुझे ये एक हेल्प कर सकते हैं, कैन यू गिव मी व्हाट इज अ गुड डेफिनेशन और फिलॉसफी फॉर पेंशन? पेंशन की फिलॉसफी होनी क्या चाहिए जो कि ओवरऑल आर्किटेक्चर फिर उसके तहत चल सके?
सर ये पहला ये सवाल। जी सर, मैं जवाब दे दूं पहले सवाल का सर? जी सर प्लीज, आप एनी टाइम। सर जर्मनी में बिस्मार्क थे, उनके जमाने में पेंशन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर ये दूसरे कॉलोनियल पावर्स के पास आया, फिर इस खत्ते में भी आया। इट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट दैट जो पब्लिक सर्विस में लोग आते हैं उनकी जॉब मोबिलिटी कम है, यूजुअली दे आर नॉट एबल टू डू अदर जॉब्स, दे कैन नॉट स्विच इजीली। सो इनको ये एश्योरेंसेस देनी जानी थी। दूसरा, उनके फैसलों में पब्लिक आउटक्राई का एलिमेंट ज्यादा होता था, जो बाज़-औक़ात लार्जर पब्लिक गुड में तो होते हैं लेकिन अनपॉपुलर इन द शॉर्ट रन होते हैं। इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए पेंशन का कॉन्सेप्ट डाला गया था कि भाई डोंट वरी, यू हैव जॉब सिक्योरिटी एज वेल एज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। कॉन्सेप्ट तो वहां से आता है कि आपने पब्लिक सर्वेंट को, सिविल सर्वेंट को कितना सेफ गार्ड करना है। बिकॉज उसकी जॉब में इतनी मोबिलिटी नहीं है। आई मीन कुछ जॉब्स हो सकती हैं, बट अगर आप पुलिस वाले को देखें, वो कहाँ दूसरी नौकरी कर सकेगा इफ ही लीव्स द पुलिस आफ्टर ही हैज क्रॉस्ड अ सर्टेन एज, एंड सो मेनी अदर प्रोफेशंस एसोसिएटेड विद द स्टेट। ये जरूर था अंटिल 1970s के जो कार्डर था उनकी पे स्केल्स अलग थे और पेंशन अलग थी। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर वुड बी नॉट सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स बीइंग रिवॉर्डेड द पेंशन बिकॉज उसकी जॉब में थोड़ी मोबिलिटी का एलिमेंट ज्यादा था। वीजा वी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उनकी पेंशन बेहतर थी। ये मर्ज हो के नेशनल स्कीम्स के ऑक्यूपेशनल स्कीम्स की शक्ल उसने इख्तियार कर ली, बट कंसिडरेशंस ये दो ही थी जो मैंने आपको बताई सर पेंशन की। मगर इसको अगर आप बिल्कुल कंसिडरेशन समझ आ गई, एंड आई एम आल्सो ऑफ द व्यू कि पेंशन कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए फॉर पीपल हु हैव सर्व्ड द नेशन फॉर 30 इयर्स। मगर मेरा पॉइंट परहैप्स जरा डीपर ये है कि वो लेवल क्या होना चाहिए, जैसे आपने जिक्र किया ना 70%। मतलब एक कॉन्सेप्ट फिलॉसफी तो ये हो सकती है कि जैसे आप थे, आप रिटायर हो गए, नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ हम आपको उस लेवल की सस्टेनेबल सैलरी देंगे। ये उस टाइप का मैं जरा सा आपका व्यू लेना चाह रहा था कि उसको ब्रैकेट कर सकते हैं किसी तरह। 70% रिप्लेसमेंट रेट जो था ना, ये वेल थॉट था कि जी आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको गाड़ी चलाने के पेट्रोल का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपनी मेंटेनेंस पे इतना खर्चा नहीं पड़ना पड़ेगा, दोपहर के लंच के पैसे बाहर खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपके बच्चे बड़े हो चुके होंगे, तो 70% रिप्लेसमेंट ऑफ योर वेज विल गिव यू अ डिसेंट रिटायरमेंट। ये कॉन्सेप्ट तो वेल कैलकुलेटेड था। एंड 70% रिप्लेसमेंट को अचीव करने के लिए अगर आप अपनी वेज का 33% हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन 33 ईयर्स वो डबटेल हो जाएगा। आप इन्वेस्ट ना करें, आपके बिहाफ पे स्टेट करे हुए आपका एम्प्लॉयर कर रहा हो। ये फॉर्मूला प्राइवेट सेक्टर में अच्छे एम्प्लॉयर्स में जो पेंशन अगर नहीं देते, प्रोविडेंट फंड देते हैं जिसमें यूजुअली 10% कटता है एम्प्लॉय की तनख्वाह से और 10% एम्प्लॉयर डालता है, 20% आ गया। ग्रेजुटी भी होती है जो कि 8.33% के करीब होती है, यानी 1 सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस, 1 डिवाइड बाय 12 इज 8.33%, तो 28.33% ये हो गई। ईयूबीआई होती है जो टिपिकली वेज का 7% रेप्लिकेट करती है। तो ये मिला के 33% बन रही थी, जो कि 30 इयर्स बेसिस पे अगर इन्वेस्ट हो तो 70% रिप्लेसमेंट अचीव कर सकती है। ये क्वेश्चन 2010 तक मैनेजेबल थी, उसके बाद एक्सेसिव बेनेवोलेंस आई है। तो 33% contribution rate, whether contributed by the state, the employer or the employee, matches 70% replacement rate, which is good enough to have a respectable retirement. So respectable lifestyle जो है उसका सपोर्ट है आपके जहन में भी for these people who retire. अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि जो आपके कमेंट से भी लगा कि जो मुझे नजर आ रहा है इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। जो पेंशन सेट कर रहे हैं और जो रूल्स बना रहे हैं वो वही लोग हैं जो उसके फिर बेनिफिशियरीज होंगे। मोर और लेस ऐसे ही हो रहा है ना? ये एलिमेंट जरूर है सर, लेकिन देखिए ट्रुथ लाइज इन बिटवीन। जी, होने ये लगा कि पे स्केल्स में वेज गैप बहुत ज्यादा आने लगा। एक जमाना था कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह वीजा वी द एक्सपेंडिचर्स एंड कॉस्ट ठीक थी, कई सालों तक पेज नहीं बढ़ी। अब अगर मैं ये देखूं कि इट इज अ जॉब विच इज नाउ बिकमिंग बैक एंड लोडेड जॉब, कि आप सारी जिंदगी कम तनख्वाह पे काम करो, एंड में रिटायरमेंट अचीव कर दें। इससे बेहतर ये फॉर्मूला होता है कि रिटायरमेंट की पेंशन कम हो जाए लेकिन ड्यूरिंग द सर्विस पैसे थोड़े अच्छे हो जाएं। एग्जैक्टली। तो अब वन एनोमली इज लीडिंग टू अनदर एनोमली। हाँ, मगर मेरा सवाल ये था कि डिसीजन मेकिंग का इसका सर, जिस तरह से देखें बिजली का रेट नेपरा मिक्स करता है, ओगरा गैस का रेट फिक्स करता है, तो पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी होती तो अच्छा होता है।
है ना? हाँ, यही मेरा पॉइंट था जी सर, कि जी सर। एक्चुअली वो गेटिंग अ फ्यू सिविल सर्वेंट्स टुगेदर या जो भी है उनको कहें जी बैठें और वो सारे रूल्स बना के और कर दें, तो वहां पे मुझे तो लगता है काफी सीरियस हद तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें। बस सर तो इसका ये एक पेंशन की एक ऑटोनोमस बॉडी बन सकती है। दिस इज अ गुड रिकमेंडेशन कि कोई इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो दूसरा भी पॉइंट है ना कि जो रिटायर होने के बाद फिर हर कोई तो इतना फेमिलियर नहीं है विद द इन्वेस्टमेंट टूल्स एंड एन्युटीज क्या अवेलेबल हैं, तो उधर कोई एक गाइडिंग प्रिंसिपल हो और कोई मैनेज करने वाला हो, एंड मे बी इट विल टेक द प्रेशर ऑफ कम्यूटेशन एज वेल, आई डोंट नो। जी, इन द लॉन्ग रन, यस, आप सही कह रहे हैं सर। ठीक है, I'd like to leave it here because I'm sure there are other people. I will reach out to you, Shahnawaz, separately because you Yes, sir, have a please. lot of information that can be useful. Thank you for Yes, sir. allowing me to speak. Shukriya. सर वेलकम बहुत सर। बहुत शुक्रिया सर। बल्कि मैं ये चाहूंगा कि CFA सोसाइटी को भी आप इजाजत दें, हम भी इस सब्जेक्ट पे कुछ काम करना चाहते हैं और गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहते हैं, तो हम भी सर चाहेंगे कि हम भी वक्तन फवक्तन आपसे राब्ता रखें और जो भी हमारे प्रपोजल्स हों जो हमारे ख्याल में मुल्क के इंटरेस्ट में हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। शाहनवाज, अगला क्वेश्चन अदनान घुम्मन साहब की तरफ से है। इनका ये कहना है कि जो इंडेक्सेशन है पेंशन की, इसके बारे में बताइए। जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान में माजी में पेंशन में बहुत बड़ी बड़ी इंक्रीजेस दे दी गवर्नमेंट ने, और पेंशनर्स चूंकि एक्टिवली कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे होते इकोनॉमी में, तो शायद इसकी वजह से भी गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बहुत बढ़ गया। तो आपके इसके बारे में क्या व्यूज हैं? ऑल्दो आपने जिक्र तो किया अपनी प्रेजेंटेशन में इंडेक्सेशन का, लेकिन इसके मुतालिक हमें बताइए कि बाकी दुनिया में भी क्या ये कॉन्सेप्ट है और क्या आप वाकई कन्विंस्ड हैं कि बड़ी स्ट्रिक्ट इंडेक्सेशन होनी चाहिए, इन्फ्लेशन से ज्यादा इंक्रीज नहीं मिलनी चाहिए पेंशनर को? क्योंकि जो एक्टिव एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं और जिनकी वैसे भी अखराजात भी ज्यादा हैं, अभी उनके बच्चे छोटे हैं, रियल इंक्रीजेस उनको क्या ज्यादा मिलनी चाहिए और पेंशनर के मामले में रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए? इस पे आपके क्या व्यूज हैं? सर मेरी व्यू इस पे ये है कि जो पुराने पेंशनर्स हैं 2010 से पहले की, उनकी पेंशन्स तो कम रह गई हैं। जो पोस्ट 2010 रिटायरीज हैं उनकी पेंशन ज्यादा है। सो द पेंशन इंक्रीज शुड आल्सो बी लिंक्ड टू द बेस ऑफ द पेंशन। अगर हमारा बेस ही बड़ा है तो हाफ ऑफ इन्फ्लेशन दे दें, अगर बेस कम है तो मोर दे दें, ज्यादा दे दें। मिनिमम पेंशन इंक्रीजेस के मैं फेवर में होता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात पेंशन बहुत मीनिंगलेस अमाउंट्स रह जाती हैं फॉर दोज हु रिटायर्ड इन द 1970s और 80s। अभी भी 10,000 रुपए की जो मिनिमम पेंशन है ये इतनी ज्यादा नहीं है। बट मैं अगर इंडेक्सेशन करता तो मैं मूविंग एवरेज ऑफ इन्फ्लेशन पे करता, क्योंकि इन्फ्लेशन में भी फ्रीक ईयर्स आ जाते हैं। हमने बैलेंस रखना है, टोटल फिस्कल स्पेस को भी देखनी है। पेंशन इंक्रीज राइट नहीं है। I will ordinarily say कि 50% of moving average of inflation pass on कर दें with particular emphasis कि minimum pensions एक decent increases में आती रहें, तो that would be good enough. ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो है वो मूविंग एवरेजेस पे हैं, बट हमें ये समझना चाहिए कि ग्लोबली इन्फ्लेशन भी इतनी ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल दुरुस्त। ग्लोबली और सेफ्टी नेट्स भी तो है ना सोशल, हमारे पास वो नहीं है, तो इसलिए फिर पेंशन के इंक्रीज का केस लोग ज्यादा लेके आते हैं। बट आई वुड से कि सस्टेनेबिलिटी को देखें तो 50% ऑफ 5-year मूविंग एवरेज इज अ गुड इंडेक्सेशन। आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की रोशनी में एक अच्छा आपने ये सुजेस्ट किया। अदनान साहब का दूसरा सवाल ये है कि ये आपने फंडिंग रेशियो और अंडर फंडिंग की बात की, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। ये पेंशन लायबिलिटी और उसकी फंडिंग जो है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और गवर्नमेंट्स जो है ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि जो भी फंडिंग रिक्वायर्ड है वो गवर्नमेंट करे और उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल ना करे? देखिए सर, पेंशन फंड अगर नहीं भी होगा तो भी पेंशन स्कीम तो है। पेंशन फंड जहां जहां पब्लिक सेक्टर में मौजूद हैं, टिपिकली पेंशन पेमेंट की लायबिलिटी उन पे शिफ्ट नहीं की गई, वो रिजर्व फंड्स हैं। लायबिलिटी एम्प्लॉयर ने यानी कि स्टेट ने, बी इट प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने अपने ऊपर ही रखी हुई है। सो फंजिबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। इवन इफ टुमारो देयर इज नो फंड, द पेंशनर विल स्टिल बी पेड। फंडिंग रेशियो तो हमारी एबिलिटी टू पे पेंशंस को एनहेंस कर देता है, इसलिए फंड होना चाहिए। लेकिन ये कि ये डिस्टॉर्शन इतनी हो गई है कि अब इसको इसी तरीके से एड्रेस कर सकते हैं कि जब नई स्कीम ले आए तो उसको फुली फंडेड रखें।
या जो इसी स्कीम में रहते हुए एक सर्टेन कट ऑफ डेट के बाद के रिटायरीज हैं उनको फंड पे शिफ्ट कर दें। पुराने पेंशनर्स की या करंट पेंशनर्स का जो बर्डन है वो स्टेट को ही रखना पड़ेगा। कोई भी पेंशन फंड इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उसको कि वो एक्चुअल डेफिसिट को पूरा मीट कर सके। टू गिव यू एन एग्जांपल, सिंध में और पंजाब में कलेक्टिव एक्चुअरियल लायबिलिटी 10,000 बिलियन से ज्यादा की है। तो 10,000 अरब रुपए का फंड अब तो क्रिएट नहीं हो सकता असरे नौ। अगर क्रिएट होगा तो इट विल बी एफर्ट ऑफ सेवरल डेकेड्स। तो इसलिए बेहतर है कि कट ऑफ डेट के बाद पेंशनर्स को फंड से लिंक कर दिया जाए। बहुत अच्छा। सतीश बालानी साहब का पहला सवाल तो यही था कि क्या ये जो पेंशन फंड्स बने हुए हैं कुछ सूबों में, फेडरल गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाया, क्या ये पेंशन लायबिलिटी का भी कुछ पोर्शन ये कोई बर्डन ये उठाते हैं, कुछ पे करते हैं? वो आपने ऑलरेडी बता दिया कि वो ऐसा नहीं कर रहे और 100% पेंशन गवर्नमेंट खुद ही बजट से ही पे कर रही है। दूसरा सवाल उनका ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट और सूबों में बजट की कितनी एलोकेशन होनी चाहिए पेंशन फंड के लिए और एक्चुअली कितनी होती है? कोई इसके बारे में आप हमें देखिए सर, कुछ जी मैं बताता हूँ। जी सर, चाहिए का जो जवाब है ना, ये तो बहुत मुश्किल है देना, क्योंकि फिजिकल कंसिडरेशंस तो और भी है ना, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस नहीं बन पाता अनफॉर्चुनेटली फंडिंग के लिए कि एट अ टाइम जब हम लोगों को बुनियादी जरूरियात नहीं दे पा रहे और हम पैसे को फंड की तरफ डाइवर्ट करें, तो इसके लिए पॉलिटिकल अपील कम हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल सतीश का सवाल ये है कि इकोनॉमिकली कितनी जरूरत है, वो तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट की मर्जी है, करे या ना करे। देखिए मैं बताता मगर हूँ रिक्वायरमेंट कितनी है? देखिए, जो अगर हमारा पेंशन का खर्चा जो है वो 14% तक पहुंच चुका है, फिर तो रिक्वायरमेंट भी कम से कम 14% होनी चाहिए ऑफ द बजट। जो ट्रेंड रहा है वो एडहॉक रहा है। जो फंडिंग स्ट्रेटजी इन प्लेस है चारों सूबे में वो एडहॉक है। सिंध ने इस साल से एक्सेप्ट कर ली है, एक कैबिनेट से अप्रूव कर दी है कि 1% ऑफ प्रोविंशियल रेवेन्यू डाला जाएगा इस साल जो करंट ईयर में है, अगले साल 1.5%, उससे अगले साल 2%, हाफ परसेंट ऑफ रेवेन्यू फंड की तरफ बढ़ाते जाएंगे अंटिल इट रीचेस आइदर 9% और 7%। तो ये उन्होंने एक फंडिंग स्ट्रेटजी बनाई है। मेरा ये तजुर्बा है दुनिया भर में जो मैंने देखी है, फंडिंग स्ट्रेटजीज कामयाब रहती नहीं है अनलेस के फंड के ऊपर पेंशन पे करने की ऑब्लिगेशन भी शिफ्ट की जाए। शाहनवाज, अगर जल्दी से आप बता सकें कंट्रीब्यूशन रेशियो से क्या मुराद है और पाकिस्तान में जो पेंशन स्कीम्स हैं इनकी कंट्रीब्यूशन रेशियो कहां पहुंच गई है और दुनिया में आमतौर पे कितनी होती है? सर, जो हमारी 2010 तक स्कीम थी उसमें अगर हम फंड बनाते तो कंट्रीब्यूशन रेशियो 33% चाहिए था। अब अगर हम फंड करते हैं बिकॉज पेंशन स्कीम हमने ज्यादा जनरस कर दी, नाउ वी नीड ए 65% कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो अगर एक एम्प्लॉय की तनख्वाह ₹1,00,000 है, जब तक हम 65,000 रुपए पेंशन फंड में नहीं डालेंगे तो उसके रिटायरमेंट की पेंशन के एक्चुअल डेफिसिट मीट नहीं होगा। ग्लोबल प्रैक्टिसेस 17-18% भी हैं, लेकिन वहां बेस वेज भी हाई हैं और वो स्टार्ट बहुत अर्ली होती हैं। दे आर यूजुअली नेशनल स्कीम्स। लोग 20-25 साल में वर्किंग फोर्स में शामिल होते हैं और 65-70 साल तक रहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो हालांकि 17-18% होता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन पीरियड भी 45 साल होता है, तो फंड्स फिर मैच हो जाते हैं। अब दुनिया के ज्यादातर स्टेट ओरिएंटेड स्कीम सब्सिडाइज्ड भी होती हैं कि कुछ पैसे गवर्नमेंट उसमें आइदर इन द फॉर्म ऑफ टैक्स ब्रेक या डायरेक्ट सब्सिडी अलग से भी डालते हैं, जैसे कि हमारा ईओबीआई है। इसमें एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सब्सिडीज शामिल हैं, रही हैं इन द पास्ट। ओके, बहुत मुनासिब। मोहम्मद शुएब साहब का सवाल ये है कि क्या इंडिया या कोई और मुल्क जो पाकिस्तान से मिलता जुलता हो, उन्होंने कोई पेंशन में कोई सीरियस रिफॉर्म्स किए हैं और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी उन्हें फॉलो करना चाहिए? शुएब साहब आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये पेंशन का खर्चा कोई टाइम बम की शक्ल इख्तियार कर गया है जो चंद सालों में अगर हमने कोई एक्शन ना लिया तो ये फट भी सकता है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, फाइनेंशियली बहुत बहुत मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इंडिया का मॉडल मैं पहले बताता चूँ, बहुत अच्छा मॉडल है। उन्होंने 2004 में ये फैसला किया था कि न्यू एंट्रेंट्स के लिए एक अलग स्कीम बनाई। दे मेड इंस्टीट्यूशन, पेंशन नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इनरोल्ड हैं सिमिलर टू ईओबीआई, और अपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी जो उस कट ऑफ डेट के बाद आते हैं वो उसमें इनरोल्ड हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग इनरोल्ड हैं उनकी कंट्रीब्यूशन उनका एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय खुद देता है, और जो स्टेट के हैं एम्प्लॉयज उनमें उनकी कंट्रीब्यूशन का ज़्यादा बर्डन स्टेट पे है।
but the state contributes a much higher amount than the private sector is compulsorily required to contribute. Consequently ये हो रहा है कि जो नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो रहा है उसने एक तो पेंशन को थोड़ा रैशनलाइज किया, बी उसकी फंडिंग स्टेटस शुरू से ही नियर टू 100% ही रखा है. इट इज अ गुड मॉडल. हमारे यहाँ अगर EOBI एक नेशनल स्कीम है, लेकिन वो सिर्फ एक इस वक्त प्राइवेट सेक्टर वर्कफोर्स के लिए है. दूसरा उसकी स्ट्रक्चर में ये फ्लॉ है कि वो पेंशन आर कैप्ड एट अ सर्टेन लेवल. वो इसलिए वो जो थोड़ा सा बेहतर पे ले रहे हैं उनको इतनी अपील नहीं करती. उसके मॉडल को रिफॉर्म करके एक सिंगल नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जा सकता है, बट अगेन वो सिर्फ न्यू एंट्रेंट्स इनटू द गवर्नमेंट सर्विस ही वहां पार्क किए जा सकते हैं. जो सर्विस में आ चुके हैं उनको सूट वो मॉडल नहीं करता. दूसरा जो पेंशन का जो टाइम बॉम्ब है, देखिए सर, टाइम बॉम्ब डिपेंड हमारे रेवेन्यूज पे भी करता है. अगर अल्लाह ताला पाकिस्तान को साथ बेहतरी करें और हमारे रेवेन्यूज बहुत तेजी से बढ़ते रहे तो ये मैटर फिर डेफर हो जाएगा. ये प्रॉब्लम जो हमें 2040 में नजर आ रहा है वो तो प्रोजेक्शन किया गया है 12% रेवेन्यू इंक्रीज पे. इफ रेवेन्यूज इंक्रीज एट द सेम परसेंटेज एज द पेंशंस तो सस्टेन रह जाएगा. अगर रेवेन्यूज यही रहते हैं और पेंशन का ये खर्चा बढ़ता है और रिफॉर्म नहीं होता तो यस, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर विल बी क्राउडेड आउट, सर्विस डिलीवरी के लिए फंड्स विल बी क्राउडेड आउट. जिसकी एक प्राइम एग्जांपल KMC है. पेंशन देने के पैसे भी नहीं है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज सफर कर रही है. वाटर बोर्ड है, पेंशन और पेरोल के बाद उनके पास नहीं है इतने अखराजात, इसलिए म्यूनिसिपल सर्विसेज सफर कर रही हैं. सो यस, टाइम बम कुछ इदारों में फट चुका है. नेशनल लेवल पे अभी तक सस्टेनेबिलिटी का इतना बड़ा इशू नहीं है अभी फिलहाल. मोहम्मद अहमद जी, बहुत शुक्रिया. मोहम्मद अहमद साहब का सवाल ये है कि क्या कोई एब्सोल्यूट नंबर अंदाजन आप बता सकते हैं कि ये जो करंट ईयर है इसमें फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिला के पेंशन पे कितना खर्चा कर रही होंगी और अगले 1-2 साल में कितना इजाफा इसमें आप देख रहे हैं होता हुआ? देखिए, कलेक्टिवली 1000 अरब से कम तो नहीं है. 600 अरब के करीब फेडरल गवर्नमेंट का था, 350 अरब हमारा था पंजाब का, 125 से 150 अरब सिंध का है, 140-45 अरब आई थिंक. तो कलेक्टिवली 1000 अरब से कम तो बिल्कुल भी नहीं है. इसमें वापटा वगैरह की कुछ स्कीमें जो गवर्नमेंट के बजट से थोड़ा बाहर हैं वो मिला लें, 1100 अरब में भी हो जाए. 12,000 से 1200 अरब पर ईयर इज अ वेरी रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द टोटल पेंशन बिल. इनफैक्ट ये थोड़ा हायर साइड पे भी होगा, ऐसे हल्का इसी बैंड में होगा. कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पंजाब का तो 21.5% है पिछले 10 साल का. आई एम श्योर कि हर जगह यही ट्रेंड है. तो यस, बढ़ता जा रहा है एब्सोल्यूट बेसिस एज वेल एज इन परसेंटेज बेसिस. अब्दुल खालिक आमिर साहब का सवाल है कि क्या गवर्नमेंट को ऐसी कानून साजी कर सकती है कि जो मौजूदा एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट मिल रहे हैं उनमें कुछ कमी की जा सके, क्योंकि आपने भी हाईलाइट किया कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज हायर कर लिए हैं गवर्नमेंट ने या बहुत से जो रिटायर भी हो चुके हैं उनकी पेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनका जो कंबाइंड बिल है. तो क्या पिछले सालों में जो आपने कहा कि बहुत ही जेनरस जो बेनिफिट्स मिले, क्या वो वापस लिए जा सकते हैं? सर देखिए, फ्रीज लगाना ज्यादा आसान है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्लॉजेस को कवर करता है. पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वो पेंशन को टच नहीं करता, वो पेरोल का जिक्र करता है, पेंशन पे साइलेंट है. जिसको हमने एक बेनिफिट दे दिया है और उसको मिलना शुरू हो चुका है, हम उसको तो कतई नहीं काट सकते. ये जरूर कह सकते हैं कि वो बेनिफिट जो किसी को मिल सकता था और आइंदा नहीं मिलेगा, इस पे हम बात कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए पेंशन की लेजिस्लेशन ला के करेंगे तो फिर ये एक उस रेगुलेटरी ऑर्फन वाले फेज से निकल आएगा, फिर ये सस्टेन कर सकेंगे रिफॉर्म्स. दूसरे वो रिफॉर्म्स हैं कि देखिए हम ग्रेजुअल फेज आउट करें. जो हमने ज्यादा इंक्रीजेस दे दिए हैं, ये कहते हैं कि जी हर साल इतना इतना परसेंटेज में आने वाले रिटायरीज को कम होगा. तो देयर आर मेथड्स ग्लोबली कि आप उसको कितना स्मूथली इंप्लीमेंट करते हैं. पेंशन की स्कीम देखिए सर, अगर किसी बंदे ने किसी की फैमिली पेंशन मिला के अगर 40 से 50 साल चल रही है तो 10-12 साल में स्मूथनिंग हो सकती है. एक रिफॉर्म तो ये बड़ा आसान है कि फ्यूचर इंक्रीजेस कम कर दिए जाएं, बेस पेंशन की कैलकुलेशंस के फॉर्मूलाज कम कर दिए जाएं, तनख्वाह बढ़ा के फ्यूचर पेंशन कम कर दी जाए. तो बैक एंड लोडिंग, फ्रंट एंड लोडिंग, ऑल ऑप्शंस आर पॉसिबल. नासिर वाइन साहब बड़े मायानाज एक्चुअली हैं और गवर्नमेंट्स को बहुत ज्यादा एडवाइस भी करते रहते हैं पेंशन स्कीम्स के ऊपर. नासिर साहब ने ये कहा है कि क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस के लिए पब्लिक सेक्टर में मुख्तलिफ स्कीम्स होनी चाहिए, जैसे टीचर्स हैं, पुलिस है या डॉक्टर्स हैं. पहले तो मैं नासिर वाइन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो हमारे साथ हैं
तो नासिर वाइन साहब को अनम्यूट कीजिए, पहले तो वो हमें कुछ बताएं कि इसकी क्या लॉजिक है, बाकी दुनिया में ऐसा क्यों होता है। तो फिर शाहनवाज जो है उनके सवाल को रिस्पॉन्ड, फिर उसके बाद शाहनवाज से रिक्वेस्ट करेंगे कि रिस्पॉन्ड करें। जी जी Assalamu alaikum ji. Can you hear me? जी जी, we can hear Yes, you. yes, we can. Ji Shahnawaz Sahab, thank you so much for your presentation. Very informative, and Thank you. your responses bhi aap de rahe hain to the various questions, very good responses. Yeah, the reason I raised this question of having different pension schemes for different occupational roles is कि आप आपने mention किया during your presentation there are different needs of different occupations. Police guard, they need to retire early because वो उनकी जो job है वो strenuous है. They can't work until 60, 65. Whereas clerical staff, they can work longer and contribute longer. Military already is a separate scheme. And we have seen across different countries, UK, जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ we have different schemes for different occupations. Teachers की अपनी scheme है, police वालों की अपनी scheme है, fire brigade की अपनी scheme है, civil servants की separate scheme है. So that allows the pension arrangement to be made specific, tailored to the needs of that occupation. But Pakistan, we have one scheme which tries to address tamam occupations, and therefore you are not able to fine tune it. So that was the basis on which I asked the question. Yes sir, can I answer it sir? Please. नासिर साहब हमारे भी माशाल्लाह उस्ताद हैं, एंड सिंध हुकूमत में भी हमारे एक्चुअली थे, एंड वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नासिर साहब. सर 1970s तक हमारे ग्रेड्स भी डिफरेंट होते थे. जो अब हमारे पास ग्रेड 1 से ग्रेड 22 हैं, ये स्केल भी नेशनल स्केल या यूनिफॉर्म स्केल नहीं था. देयर वर मेनी स्केल्स. टीचर्स का अलग स्केल था, और कैडर के हिसाब से अलग स्केल्स था, जैनिटोरियल स्टाफ का अलग कैडर था. इन पाकिस्तान नाउ वी हैव ओनली 3 सेपरेट स्कीम स्ट्रक्चर्स. मिलिट्री है जिसमें एक्रूल रेट फास्ट है, और हायर जुडिशरी है जिनका एक्रूल रेट और ज्यादा फास्ट है, और 65 इयर्स की रिटायरमेंट एज है. डेफिनेटली बन सकते हैं टीचर्स का अलग, हेल्थ प्रोफेशनल्स का अलग, लेकिन उसके लिए फिर पे स्केल भी डिफरेंट करना पड़ेगा. हमने पे स्केल को अलाउंसेस के थ्रू डिफरेंट कर दिया है, बेसिक पेस को सेपरेट नहीं किया. आई फील के इसकी भी जरूरत है कि जहां अलाउंसेस पेंशनेबल करने हैं वहां कर लें, जहां नहीं करने. जैसे टीचर्स के केस में टाइम स्केल प्रमोशंस डाल दिए गए, एंड दैट दे वर मेड पेंशनेबल. तो टीचर्स के अलाउंसेस कम है, लेकिन पेंशनेबल पे बहुत ज्यादा है. कॉन्सिक्वेंटली उनकी पेंशन भी बहुत ज्यादा है, और चूंकि वर्कफोर्स का 50% है, तो टोटल बिल पे इम्पैक्ट भी ज्यादा है. जो टाइम स्केल के जैसे फॉर एग्जांपल उनके पे के इंक्रीजेस थे, वो अलाउंस के फॉर्म में होते, तो उनकी ग्रॉस तो बढ़ जाती, मगर पेंशनेबल पे कम बढ़ती, और कॉन्सिक्वेंटली पेंशन भी कम बनती. तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर को 4-5 बड़ी कैटेगरी में तो बनाया जा सकता है. बिल्कुल इसमें गुंजाइश है, और आई एम श्योर कि हमारे वेरियस फोरम्स पे इस पे बात भी हो रही है. बहुत शुक्रिया शाहनवाज. मोहम्मद, अब मेरे ख्याल जल्दी से 1-2 सवाल और पूछते हैं जी, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो गया. जी प्लीज. मोहम्मद फैसल साहब का ख्याल है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम अगर हम नए रिक्रूट्स के लिए ले आए तो उसमें गलतियां करने का चांस कम होगा, जो माजी में चूंकि लाइफ टाइम पेंशन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की थी और बाद में गवर्नमेंट ने उसको सही तरह से अंदाजा नहीं लगा पाई कि उसका बिल जो है वो कितना बढ़ जाएगा, और कुछ जेनरस उसके अंदर इंक्रीजेस देने की वजह से अब गवर्नमेंट मुश्किलात में भी आ गई. तो क्या आप कन्विंस्ड हैं? वैसे तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में सवाल का जवाब ऑलरेडी दे भी दिया था कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे जाना अच्छी बात है, मगर मौजूदा मसाइल को हल करने के लिए उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा. जी सर, क्योंकि कंट्रीब्यूटरी स्कीम का इम्पैक्ट भी 30 साल बाद जाके आएगा, 15 साल पे नहीं आएगा. हमारी स्कीम बहुत लंबी है, और हमें यह समझना चाहिए कि हमारे अगर हम लमसम सेटलमेंट्स पे जाते हैं, तो हमारे एक एवरेज एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट से भी नहीं होता. वो फाइनेंशियल सेक्टर के प्रोडक्ट से भी डवटेल करना है कि जी ठीक है, हमने आपके फंड में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन 30 साल बाद वो किसी एन्युटी में चला जाएगा. आपको हम हाथ में पैसे नहीं देंगे, आप खर्च कर देंगे, और फिर हमारे पास वापस आएंगे कि पैसे हमें दो. आई हैव डेल्ट विद सो मेनी केसेस कि लोग रिटायरमेंट के बाद अपने जो उन्होंने पेंशन कम्यूट कराई थी, लमसम पैसे खर्च कर लिए, और फिर कहते थे कि जी
ये क्या मैं वापस दोबारा बढ़ी हुई पेंशन नहीं ले सकता? कैन नॉट बी मेड इंस्टॉलमेंट्स? ऑब्वियसली देयर इज नो प्रोविजन इन द रूल्स, बट गिविंग देम कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ इनकम इज बेटर देन अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अगर हो तो कंपल्सरी किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट हो रही हो, बट न्यू एंट्रेंट्स के लिए कोई स्कीम आएगी, मिनिमम 30 इयर्स लगेंगे उसका हमें फायदा देने के लिए। वाजिद साहब ने भी ये कहा कि क्या आपके ख्याल में ये जो 70% रिप्लेसमेंट रेट है इसको अगर कम कर दिया जाए और उसके बदले में एक लंप सम पेमेंट जो है वो अच्छा अमाउंट पे कर दिया जाए रिटायरमेंट पे, और फिर ऑन गोइंग पेंशन ज्यादा कम हो, एक ये ऑप्शन हो सकती है। और दूसरा, इन्होंने वही डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वाली बात की, जैसे उन्होंने कहा कि अमेरिका में रिटायरमेंट अकाउंट्स होती हैं और उनमें कॉन्ट्रीब्यूशंस जाते रहते हैं एम्प्लॉयज के लिए, जो एम्प्लॉयर भी कर रहा होता है और एम्प्लॉय खुद कर रहा होता है। तो क्या उस तरह का निज़ाम लाने से कुछ फायदा हो सकता है? सर मैं लमसम पैसे दे के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट्स के फेवर में होता नहीं हूँ। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन डील की थी, सिंध एग्रीकल्चरल सरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन, डिफंड ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को लमसम पैसे दे के फारिग कर दिया गया। बहुत सारे लोग आए और कहने लगे कि यार हमें आप रनिंग पेंशन नहीं देते तो अच्छा था, या एक सॉर्ट ऑफ मर्सी पिटिशंस कह लो कि जी हमसे गलती होगी, हमने तो पैसे खर्च कर दिया, आप हमें पेंशन ही दे देते। लोग पैसे हैंडल नहीं कर पाते, ला महला पैसे खर्च करके पॉपर बन जाते हैं। जो पैसे, क्योंकि वो कभी उन्होंने इकट्ठे पैसे देखे ही नहीं होते। बहुत सारे, एक शख्स जिसकी तनख्वाह 50,000 आप हाथ में 50 लाख का चेक देते हैं, वो 2 साल में शाह खर्चा करके खर्च कर देता है। पहले साल हज करता है, दूसरे साल उम्रा करता है, तीसरे साल ग्रैंड किस्म के फंक्शंस करता है, वैकेशन करता है, तीसरे साल पॉपर होता है। ये बहुत 80% केसेस में यही होता है। एन्युटी बना के दें, कंटिन्यूस स्ट्रीम बना के दें, पहले वो 70% आपको बाजार ज्यादा लग रहा है। नेशनल स्कीम्स और हो, जैसे चने हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो, आप कहते हैं जी आप सबका हेल्थ केयर अच्छा है क्योंकि पेंशनर का खर्चा हेल्थ पे भी काफी हो रहा होता है, वी गिव यू प्रेफरेंशियल हेल्थ केयर, आप कम पेंशन कम कर देते हैं। ये स्कीम्स दुनिया के दूसरे मुल्कों में हुई हैं, लाइक आई सेड ना कि मुल्क में ओवरऑल वेलफेयर के मैकेनिज्म्स इतने अच्छे मौजूद नहीं है, हेल्थ के उतने अच्छे मौजूद नहीं है, इसलिए अनइक्वल बर्डन आ जाता है पेंशन पे। बट 70% ठीक थी अगर उसको प्लान फाइनेंशियली सही किया जाता तो। बहुत शुक्रिया। आखिरी सिर्फ अब नुमान लियाकत का सवाल ये है कि गवर्नमेंट में, जैसे आपने खुद भी कहा कि तनख्वाहें तो कम है, तो पेंशन की वजह से, एक पेंशन जरा जेनरस है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में, तो ओवरऑल कॉम्पनसेट हो जाता है एम्प्लॉई। तो नुमान का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट पेंशन को कम करना चाहती है गोइंग फॉरवर्ड, तो क्या फिर गवर्नमेंट को तनख्वाहें थोड़ी बढ़ानी नहीं चाहिए ज्यादा तेज रफ्तारी से, ताकि जी ओवरऑल कॉम्पनसेशन जो है एम्प्लॉय की, उसमें उसको ज्यादा नुकसान ना हो, तनख्वाह बढ़ने से वो इस काबिल हो जाए कि वो खुद भी कुछ मजीद सेविंग कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने पेंशन को तो कम कर देना है। मेरे ख्याल में आप आप भी इससे किसी हद तक इत्तेफाक तो करते हैं, जी आपने अपनी मैं प्रेजेंटेशन में भी कुछ बिल्कुल, ऐसी बात की। जी बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। अब हो ही रहा है करंटली कि हमारे जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स हैं उसकी कॉस्ट 87% पड़ रही है हमें, कि अगर एक एम्प्लॉय की तनख्वाह लाख रुपए है तो एक्चुअली भी हमें 87% और 87,000 रुपीज का खर्चा आता है फॉर द फ्यूचर पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारी चीजें। तो उसका बेहतर ये नहीं होता कि हम उसको 50% या 30% पे ले आते और उसकी करंट कंपनसेशन बढ़ा देते, तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ आज इंप्रूव हो जाता है, वो खुद सेव कर सकता था। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो इंप्रूव करना है ना, ये बड़ा अच्छा प्रपोजल है, बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही, मुनासिब बात। एक सवाल ये ताहा जावेद ने अभी कर लिया, मेरे ख्याल में इसका जवाब ज्यादा मुनासिब होगा अगर हम जफर अहमद खान साहब से रिक्वेस्ट करें। सवाल ये है सर कि क्या आपको गवर्नमेंट में कमिटमेंट और विलिंगनेस नजर आती है पेंशन रिफॉर्म्स का, पेंशन चैलेंज का सामना करने की और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराने की? जी थैंक यू। ये तो जी मेरे लिए जरा प्री मैच्योर है क्वेश्चन, ये तो मैं अभी टेस्ट करूंगा और ये बड़ा अच्छा टेस्ट होगा। मगर ये मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि इस वक्त जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, उन्होंने इनॉग्रल जो हमारी कमीशन की जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने अपने व्यूज़ तो उसमें हमें दे दिए थे, एंड ही वाज क्वाइट कैटेगोरिक कि वी हैव टू डू something structurally and from ideas point of view because pension is getting out of hand. तो ये अवेयरनेस है। अब बाकी आ जाती है पॉलिटिकल विल की, यू नो इट्स अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कितना वो करते हैं, प्लस आपको पता है ह्यूज
lobby groups भी हैं, and they will obviously fight till the end to make sure कि वो नुकसान में नहीं रहे. तो मेरा short answer तो लंबा मैं बोल गया हूँ इसके ऊपर. It's early days for me. I think there is a desire to do something, मगर किस स्पीड से चलेंगे and how quickly they will accept any recommendations जो कि hopefully will be well considered by all eminent people. हम बहुत सारे लोगों से interact कर रहे हैं for ideas, and इनसे शाहनवाज साहब से तो definitely और interaction करेंगे. तो ये इस वक्त मैं यही कह सकता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Shahnawaz, thank you very much for taking time out of your busy schedule and making this presentation and answering all the questions. And special thanks to Mr. Zafar Ahmed Khan and Mr. Nasir Wain, whose presence and participation has raised the profile of this event. CFS Society is very thankful to both of you, sir. And hopefully you will continue to patronize and participate in our events. We will make sure that we inform you about our upcoming events also. This is the mission of the CFA Society, to promote awareness regarding issues of national importance, particularly those with economic and financial implications. और CFA Society के members का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला. Thank you very much to all the participants and hope to see you soon again, inshallah. Thank you. Shukriya. Allah Hafiz.